कि फिल्म जो है वो एक डायरेक्टर का मीडियम है. How fame takes you away from not being yourself completely also. There is a lot of information on net which has been given and more or less is correct. So मेरे ऊपर ज़्यादा फुटेज आया, मेरे ऊपर कैमरा है, my perspective is not that. Aloha and Namaste. Welcome to Beyond the Spotlight with Garima. Our guest for today is a very dynamic Indian actor, celebrated for his work in TV, in theatres, films, digital platforms. He's trained from the prestigious National School of Drama and has given us such brilliant performances in famous films like Donkey, Manikarnika, Kesari, and also web series like Ashram, Sacred Games, and Raktanchal. He's none other than Vikram Kochar, known for his range, depth, intensity, and authenticity. I'm so glad to welcome him today to our podcast to know his inspiring journey and his processes. Why don't you tell us about your journey? थोड़ा सा. ठीक है, मैं शॉर्ट में बोलता हूँ क्योंकि there is a lot of information on net which has been given and more or less is correct. So my father was an army, so we are 3 siblings and I'm the youngest. So I never stayed in a particular place. So to tell this that from where do I belong to, it's a difficult thing for me to say. And being an army, it's like you get posted to different places. I was born in Bengal in Binaguri. Oh. And तो creativity आप born वहीं से सारा creativity you were born with. I would say अब बंगाल को वैसे बोला जाता है. But I think there was a lot of versatility which I was exposed to as on the culture basis, and that's how it became easier for me. So to adapt to different cultures. तो बचपन से था कि एक्टर बनना है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था. बचपन से तो बहुत कुछ मतलब चेंज होता रहा. I think I was much of a lost kid. So नहीं, बचपन से नहीं था एक्टर बनना है. वो बहुत बाद में आया समझ में. मेरे हिसाब से वो लेट था, कई लोगों के हिसाब से वो लेट नहीं होता है. बाकी तो यही है कि it depends. कब था जब आपने एक्टिंग को एकदम सीरियसली कि नहीं मेरे को अब एक्टर ही बनना है? It was my second year of NSD. Till that second year of NSD? Yes. I think generally people go to NSD because तब तक decide हो गया होता है यही करना है. हाँ, मतलब I was wanting to do theatre. Okay. I was wanting to direct plays and stuff. I was trying to become a director at that point of time. But I think I got more clarity that I need to explore more with myself. And eventually I turned out to be an actor later. So I accepted how it was. I love it. This is something I'm hearing for the first time, huh? But that is how it happened. Yeah, amazing. I love it. So, what was the first, like NSD में जब आप आ गए, उसके बाद ऐसा कोई आपका first experience रहा हो जब you were like कि हाँ actor ही सही है, like I want to focus more on actor. Was there like a moment when you realized or like a situation that brought you to that realization? See, telling stories was something which really appealed me. So I was interested in theatre. एक होता है ना कि आपकी calling होती है but you do not understand that. Yeah. So स्कूल में थिएटर वेटर करने में मजा आता था. I was an elocutionist. Elocutionist मतलब used to give speeches, not debate. Okay. So elocution is about talking about one thing and everybody will have their own versions of saying things. Then also became a debater. I was a Hindi elocutioner, Hindi debater. Used to represent school when I was in 7th or 8th class or something like that, on the junior section of it. Then because of the transferable job, the schools would also get changed. And I ended up in Delhi in my 10th class. And after that, I stayed in Delhi for a longer period of time. So I used to do plays for annual functions and some recitation competition or elocution competitions or debating competitions. I used to participate as it happens in schools. But it happens on a very extracurricular activity kind of a thing. Nobody gives a heed to it. Yeah. Also used to play a lot of football. Used to play with the school team. Used to play basketball also. So there were things which we all do in school time. It became very serious when my marks were not good in my 12th class, so it was very difficult to get an admission anywhere. My sister was studying in Kirori Mill College, Delhi University, so she told me that you also get admission on extracurricular
activity basis, so you can fill that form. So I filled up the form for different colleges, and there was an audition process which was happening in Kirori College. They did not consider what your marks were. They were only considering you how well you could, if we want you to take in here or not. So I think in that there were about 300 to 400 applications, but out of that only 70 kids who turned up for the audition, and 4 were supposed to get selected. So I got selected Nice. at Kirori College, and then they were like, take up any course. So I wanted to take an easy course because Focus to the I could figure out that studying is something which is not, I haven't found what I need to study. So took a BCom pass in Kirori College and started doing theatre there, because I was in dramatic admission. I got admitted through dramatics. So I was supposed to do theatre for college, and that society, the Players is the name of the society, is good. They have got quite a lineage, and they have been continuing to perform. We have got a good alumni base. So our alumni used to come back, and the quality of plays were really nice. They used to take theatre very seriously, and there are a lot of people functioning in industry or elsewhere also doing really good quality theatre, really good quality films. Like my seniors being like Ali Abbas Zafar, Mohammad Zishan Ayub, they're all from the Players. Oh, really? The Players. Wow, I And didn't know that. there are loads of them. There are loads of them. You search the Players, you will come to know what exactly this society is about. So, in fact, it's more enriching. Sometimes I find that this is more enriching than NSD at points. So that's where I really got exposed to what theatre is. And then I started doing theatre, and I started enjoying it. So it was a good journey which was happening. My parents were, of course, they would always say that why to do theatre. They would always push you to something which can make your career. Yeah. So belonging to a service class family, they would always tell you that study, give UPSC examinations, 9 to 6 job, CDS कर लो, कुछ कर लो. तो इस तरीके की चीजें, सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो बेहतर है. Become an army officer if you can. Do all that. So I tried all that also. Because नहीं पता ना, हाथ पाँव मार रहे चल रहा है. I think that's what your 20s are for also, na? Exactly. You experiment, find out yourself, वो वाला journey. But theatre was very Came amazing. naturally. It was so much fun that you would not escape it. You would want to do that. So घर से एक्स्ट्रा टाइम निकाल के बोल के नहीं भाई अभी प्ले है तो रात भर भी हॉस्टल्स में कभी कभार वहीं पर किरण कॉलेज के ऑडिटोरियम में हम लोग सोए हैं बहुत बारी. प्लेस बना रहे हैं, चीजें हैं. So eventually parents could also not say much because you are a dramatics admission, otherwise you would be thrown out of the college. You can always put that threat in their mind. Best excuse. जरूरत है करने की. Exactly. Okay. तो इतना आपके पास theatre experience था, like obviously acting experience you have, techniques you've learned, so much you've learned through the journey. तो वो सब आपने अपने projects when you started doing TV, films, web series, वो सब apply किया होगा. How different did you think theatre was from camera work? थोड़ा मीडियम फर्क है. एक्टिंग के लिए तो आई वुड से थिएटर है काफी फर्क है. मतलब एज एवरीबॉडी सेज दिस कि फिल्म्स जो हैं वो डायरेक्टर का मीडियम है, एंड थिएटर जो है वो एक्टर का मीडियम है. उसके स्पेसिफिक रीजंस हैं, बिकॉज फिल्म में आपको वही 1-2 मिनट के लिए अच्छी एक्टिंग करनी होती है, उसके बाद सीधा रिलैक्स. बट इन थिएटर एक बार आप परवान पे चढ़े तो वैसा ही है कि जो एक्टर करेगा वो होगा. पर जैसे ये बहुत सुना है कि if you're a theater actor तो on screen like TV पे also you're a way better actor, like everyone prefers having theater experience in an actor. ऐसी क्या चीज हो जाती है आपकी परफॉर्मेंस में या आपकी टेक्निक्स में जो आप कैमरा के सामने भी ला पाते हो from that theater experience, but how do you like also adapt differently through that? What theater does is that theater would always talk about the script in its whole. तो कोई भी कैसा भी एक्ट कर रहा होगा, ऑफ कोर्स इनिशियली तो आपको ये सब चीजें नहीं समझ में आती है, पर आप प्ले रीडिंग्स करते हैं हमेशा रिहर्सल्स में, एंड देन यू रिहर्स दोस सीन्स आल्सो अ लॉट ऑफ टाइम्स. सो अ थिएटर एक्टर इज अंडर अ प्रैक्टिस ऑफ डिलीवरिंग दैट सीन अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन. तो उसको एक तो वो ग्रंच पता है, प्लस पूरी कहानी एज ए होल पढ़ते हो एज अ डिसिप्लिन, और उसके बाद आपको समझ में आती है कि कहानी में मैं क्या कर रहा हूँ. आप इम्पोर्टेंट नहीं है, आप जो बात कह रहे हैं वो हमेशा वही इम्पोर्टेंट है. आप फिल्म क्यों बना रहे हैं? क्योंकि कहानी आपको ऑडियंस तक पहुंचानी है. आप एक प्ले क्यों बना रहे हैं? क्योंकि कहानी है जो आपको ऑडियंस तक पहुंचानी है. अब फिल्म में क्योंकि इतना सारा डाइसेक्शन हो जाता है,
तो हर किसी पे चेक रखना कि सबने एक फिल्म पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, प्लस इट्स ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट है ना, मल्टीवर्स वाला जैसा मामला है ना इसका, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, Yeah. कैमरा है, फिर लोकेशन है, हाँ. फिर आर्ट है, कॉस्ट्यूम है, Yeah. बहुत सारी चीजें जो चलती रहेंगी, Hmm. तो वो सारी चीजें सबको असेमिलेट करके फिल्म बनाई जाती है, तो एक बेचारा डायरेक्टर वो है कितनी जगहों पे इमीडिएटली ध्यान देगा। सो दैट्स व्हाई अगर फिल्म्स भी हम बनाते हैं तो रीडिंग्स होती हैं, थोड़ी बहुत रिहर्सल्स होती हैं कई फिल्म्स में, बहुत ही कम फिल्म्स में, वर्कशॉप्स होती हैं। हाँ, पर बहुत वो 1-2 दिन की वर्कशॉप टाइप्स होती है, विच इज अगर आप थिएटर से कंपेयर करो तो कुछ नहीं है। थिएटर बनता है तो कुछ नहीं, 30 से 40 दिन तो लगेंगे ना आराम से। और 30 से 40 दिन करना क्या है आपने? 30 से 40 दिन आप सिर्फ रिहर्सल्स करोगे, स्क्रिप्ट को समझोगे, क्या बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ ये सीन। बट एज फिल्म्स में कभी कभार एक्टर्स को हायर कर लिया जाता है, दे डोंट इवन अंडरस्टैंड व्हाट द स्क्रिप्ट इज, एंड वहां पर उनको बस ये समझ में आता है कि मेरे को फिल्म मिल गई है, मैं एज अ पर्सनालिटी फेमस हो जाऊंगा, वहीं वो सीन खराब हो जाता है। So it is not about you, but people are full of themselves. Everybody is. I am also. So वो लोगों को चाहिए ना कि मेरा औदा, मेरा stardom. That's where it goes. It films become very challenging, very challenging. तो आपने ऐसा कोई चैलेंज फेस किया आपके लाइक व्हेन यू स्टार्टेड डूइंग फिल्म्स कि यू नो कुछ सी कि कोई को एक्टर ऐसा है हु इज लाइक ट्राइंग टू टेक ओवर एंड नॉट यू नो एक वो जुगलबंदी टाइप नहीं बैठ रहा है बहुत 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 हाँ तो उसमें फिर आप क्या करते हो कुछ नहीं, समझाने की कोशिश करते हैं। हाँ मतलब को एक्टर से बात करते हैं, ये बात करते हैं कि हम ये सीन क्यों कर रहे हैं, इस सीन का मतलब क्या है, और इस सीन के मतलब के हिसाब से ये बात किसके थ्रू आ रही है। एंड ये भी होता है कभी कभार कि कभी कभार एक्टर्स कहते हैं कि अरे आपकी टोनालिटी वैसी नहीं आ रही। मैंने यार बात इंपॉर्टेंट है, मैं इसको ऐसे क्यों बोलूंगा तो अजीब लगेगा ना। हाँ तो मैंने जब तक जिस चीज की नेसेसिटी नहीं है, इट इज अबाउट मेकिंग थिंग्स वेरी सिंपल। बहुत बार ये भी हो जाता है कि मूवी बहुत हिट हो जाएगी बट क्योंकि किसी और ने आपकी परफॉर्मेंस सैबोटाज की है सैबोटाजिंग का मतलब क्या है? कि सपोज आपके सीन आपका कोई बहुत इमोशनल सीन है फॉर एग्जांपल यू लाइक रियली प्रेप्ड फॉर दैट सीन एंड मेरा मे बी से शोल्डर आ रहा है ओटीएस है मेरा और मैं बार बार खांस दूं या मैं ढंग से क्यूज ही ना दूं लाइक यू नो आई एम जस्ट लाइक कि आप मुझसे बेटर ना निकाल पाओ अपना सीन तो उसमें क्या करोगे? कुछ नहीं, बोलना पड़ेगा कि भाई क्यूज थोड़े से अच्छे से दे दो, बोलना तो पड़ेगा। हाँ। और ये ज्यादातर डायरेक्टर के अंडर है। तभी मैं आपसे बोल रहा था कि फिल्म जो है वो एक डायरेक्टर का मीडियम है। हाँ। ये सारे कॉल्स एक एक्टर एक लिमिट तक ले सकता है और एक लिमिट के बाद वो नहीं ले सकता। पर आपको ये भी समझना पड़ेगा कि अगर आपका क्लोज लगा उसका ओटीएस है तो उसका भी क्लोज लगेगा, आपका ओटीएस होगा। हाँ। तो आपकी ईमानदारी है कि आप उसे पूरी शिद्दत से वो क्यूज दे। कभी कभार तो को एक्टर होते भी नहीं है, हाँ। जूनियर्स को लगा देते हैं। व्हिच इज बेटर ना आई थिंक। नहीं मतलब इन अ वे कभी कभार सही है हाँ। कि कम से कम इसके मन में कोई कंपटीशन तो नहीं चल रहा है। ये बहुत ही अजीब सी इविल सी चीज है। तब आप, मैं वही बोल रहा हूँ, तब आप फिल्म नहीं बना रहे हैं। फिर आप यहाँ कहानियां कहने के लिए आए नहीं है, जो कि बेसिक मुद्दा था फिल्म बनाने का। पर सब नहीं आते, बहुत लोग बिजनेस के लिए भी आते हैं ना कि उनको बस पैसा कमाना है, एक बड़ा स्टार चाहिए। और यू नो बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो स्टार्स होते हैं दे टेक ओवर द स्क्रिप्ट आल्सो कि मेरा ये डायलॉग बढ़ा दो या ये काट दो, ऐसा भी होता है, हमने सुना है। ऑडियंस बहुत इंटेलिजेंट है, उन स्क्रिप्टों का कुछ होता भी नहीं है। नहीं तो आपने कभी लाइक ऐसा सेट? लेकिन ऐसा भी है कि डायरेक्टर संभाल सकता है। हाँ। डायरेक्टर को लगता है कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा, दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, आई कैन हैंडल दिस समवेयर। एडिट में देख लेंगे। आई थिंक आजकल ये भी बहुत होता है। इट्स अ डायरेक्टर्स मीडियम, दैट्स व्हाई इट इज डायरेक्टर्स मीडियम। कि जब स्ट्रेस होते हैं या पॉलिटिक्स होते हैं सेट पे, तो हाउ डू यू होल्ड ऑन टू योर ओन आइडेंटिटी इन दैट? लाइक कैसे अपने आप को स्टेबल रख पाते हो आप? कुछ नहीं, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल सी चीज है। मैं एक एक्टर हूं और यहाँ पर मैं एक काम करने आया हूँ। ये सीन का ये मतलब था, इस सीन का ये मतलब निकलना चाहिए। जनरली हाथ पांव मार के कुछ ना कुछ XYZ करके कुछ ना कुछ आंसर मिल जाता है कि अगर ये ऐसा करेंगे तो इस सीन को कैसे वर्क कराना है। मेरा तो पर्सपेक्टिव वो होता है। द आइडिया और पर्सपेक्टिव इज नॉट टू कीप योरसेल्फ देयर कि मेरे ऊपर ज्यादा फुटेज आया, मेरे ऊपर कैमरा है। माय पर्सपेक्टिव इज नॉट दैट। बुरा दिखने से अच्छा है कम दिखो, कम दिखो। जितना दिखो उतना अच्छा दिखो। तो आप इसमें बहुत मिनिमलिस्टिकली काम करके निकल जाते हो। पर बुरा नहीं लगता कभी कभी कि मतलब शुरू में जब स्क्रिप्ट मिलती है तो लगता है ओ माय गॉड कितना बढ़िया है, पर फिर जब तक वो सेट पे पहुंचती है बात तो लगता है यार छोड़ो, खत्म करके घर जाते हैं। लगता है कहीं तो उसमें कुछ कर नहीं सकते, वो खराब हो गई ना, स्क्रिप्ट खराब हो गई, सीन खराब हो गया। तो उस टाइम पे अपने हर्ट, अपनी डिसअपॉइंटमेंट को आप कैसे यू नो हाउ डू यू डील विद दैट? एक तो यू शुड नॉट टेक दैट वेरी सीरियसली, मुझे ऐसा लगता है। यू वर देयर टू परफॉर्म,
इट्स लाइक प्लेइंग क्रिकेट ना. अब विराट कोहली हर बार आके तो सेंचुरी नहीं बनाएंगे ना. मतलब मैं विराट कोहली हूँ ये नहीं कह रहा हूँ, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि नहीं they would get out on duck also ना. It's a game. yeah That's why we call it play a scene. So you're playing a scene. yeah So in that play, it can get better. It can also get bad. yeah Because depend ना, इसमें कभी कभार in that play it doesn't, you don't play well. It means that. yeah So ठीक है. If it has happened, it's okay. There would be another opportunity. You know your job. You're understanding what exactly. I think what is where your question is going is, yeah what is more necessary for an actor to deal with it, right? हाँ So what is more necessary is that सबसे पहले आप अपने आप से ये सवाल पूछे कि मैं कर क्यों रहा हूँ, ये कहानी मेरे को बतानी ही क्यों है. दो चीजें हैं जिसके लिए लोग यहाँ आते हैं. एक जिन्हें एक्चुअली कहानियों से बहुत प्यार है, जिस कैटेगरी में मैं अपने आप को पाता हूँ, जिसका बाय प्रोडक्ट फेम है. okay एंड वो फेम, उसका बाय प्रोडक्ट भी मुझे पसंद है, पर वो मेरा बाय प्रोडक्ट है. हाँ कई लोग हैं जिनका मेन प्रोडक्ट फेम होता फेम है. होता है दे डोंट अंडरस्टैंड दिस कि बाय प्रोडक्ट की फेम जो है वो बाय प्रोडक्ट ही है, और वो बाय प्रोडक्ट आपके अच्छे काम से ही आएगा. एंड इफ यू डू गुड वर्क यू विल बी, आज नहीं तो लेट सही, बट यू विल बी सेलिब्रेटेड दैट वे. yeah that's true या फिर आप अगर फेम के लिए खेल रहे हैं तो फेम वुड नॉट बी एबल टू सस्टेन यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. आप आज को एक फिल्म में शायद अच्छे दिख जाएंगे, दूसरे में दिख जाएंगे, पर बहुत जल्दी आपका सच जो है वो दुनिया के सामने आ जाएगा, और सच कभी नहीं छुपता. एक बहुत बढ़िया लाइन थी, आई फॉरगॉट किसकी लाइन है ये, बट सिनेमा एक्टिंग के लिए बहुत फिट होती है. वो ये है कि फोकस ऑन इम्प्रूविंग नॉट प्रूविंग. I like that. सो Focus on improving, not proving. Which actually, देखा जाए तो stands true for not just actors also in life, right? इन लाइफ For everyone, day to day में देखा जाए कितनी बार ये होता है कि हम लोग कुछ ना कुछ प्रूव करने के लिए चीजें कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ के लिए नहीं कर रहे हैं. Right, amazing. and you will be satisfied and you will be content, you will be happy if you're improving. Yeah, I think biologically speaking also, तुम्हारा every kind of productivity gives you oxytocin, right? So why when you actually see that growth in yourself, when you see yourself improving, it'll just give you that happiness क्योंकि oxytocin release हो रहा है. Amazing, I love it. और आपकी लाइफ भी बहुत एनरिच हो जाएगी ना, बिकॉज फिर आप एक्सप्लोर करोगे, Yeah. और जब एक्सप्लोर करोगे तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा. मुझे क्यों बताना है कि मैं जिम जा रहा हूँ, हाँ. मैं करता हूँ ना. जो मेरे को अंदर से महसूस होगा वो मुझे समझ में आएगा ना कि अरे यार कुछ तो फिजिकली हुआ है. हाँ. और Simple. बहुत लोग वर्कआउट, लाइक आई हैव सम फ्रेंड्स हु like just for their mental emotional health also, like they don't believe in therapy or so much so about talking about their feelings, but a good workout for them is very therapeutic. Like whenever they're feeling very confused or this thing, they just go for a run or they'll go to the gym, and then you know after that excess of that energy has been released, they find that peace of clarity. ऐसा आपके साथ हुआ है कभी? हाँ होता है, हाँ. बहुत बारी होता है. तो what is your go to मतलब whenever you are feeling very chaotic, yeah, you know, stressed or maybe anxious also, what is your go to tool? What do you do to feel better? जनरली तो पहले तो सॉर्ट करते हो दिमाग में, तो यू राइट और यू एक्चुअली मेक इट खाचा कि प्रॉब्लम किस चीज से है, क्या है. वंस यू एड्रेस दैट, सो यू अंडरस्टैंड कि जनरली वो जो थॉट होता है, जो आपको पता लगता है, इट्स आप यू आर ओवर थिंकिंग समथिंग व्हिच डजंट हैव वैल्यू फॉर अदर पीपल दैट मच. आप अननेसेसरी उसका बात का पतंगड़ बना के बैठे हो. सो धीरे धीरे करके जब आपको वो समझ, क्योंकि जैसे ही आपने एड्रेस किया, एड्रेस करके आप उसे थर्ड पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करते हो. एंड हुसोएवर योर आपके जो भी शुभ चिंतक हैं, आप उनसे एक बारी बात करते हो, पूछते हो कि यार इस बारे में मुझे बड़ा स्ट्रेस हो रहा है, क्या करना चाहिए. दूसरा एक थ्योरी है जिस पे मैं काफ़ी बिलीव करता हूँ. कोई चीज़ स्ट्रेस देती है तो जब तक वो अपनी होती है और बहुत करीब होती है, अब इमीडिएटली थर्ड पर्सपेक्टिव नहीं मिलेगा ना. सो एंड यू कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट एनीथिंग व्हाट यू आर थिंकिंग बाय टेलिंग योरसेल्फ कि मुझे इस बारे में नहीं सोचना, बिकॉज योर माइंड इज वेरी क्लेवर एंड वो रेफरेंस पॉइंट लेगा कि किस बारे में नहीं सोचना, इस बारे में नहीं सोचना, तो वापस आप वही सोचने लग जाओगे. सो यू आर इन अ It's a loop, yeah. सो Loop which turns into a spiral very quickly also. हाँ, तो एक रिप्लेसमेंट थ्योरी है कि मान लो कि मैंने कहीं ऑडिशन दिया था और उनसे मेरी बात अच्छी नहीं है, वो डायरेक्टर मेरे बारे में कुछ सोचता है, ठीक नहीं सोचता, मैंने कहीं सुन लिया, क्या करूं, कैसे अपनी बात पहुंचाऊं, और ये नहीं समझ में आ रहा उन्हें, एंड आई रियली नीड दिस जॉब, ये मुझे बहुत ट्रबल कर रहा है, मान लो काफी देर से.
तो सबसे पहले तो मुझे जितना मैं सोच रहा हूँ शायद वो डायरेक्टर सोच भी नहीं रहा होगा। आई उसके लिए डोंट मैं थिंक शायद उसके पास इतना टाइम है सोचने का। ठीक है। हाँ। तो बट आप सोचते हो कि मैं क्या करूँ, इसको प्रूव करूँ, जाके कुछ करूँ। सिंपली अपने आप को रिप्लेस करो किसी थॉट से, या तो घूमने चले जाओ या फिर खाना बना लो। राइट, बहुत सारे लोग नशे करते हैं, बट नशे करना भी एक एस्केपिस्ट वे है, विच इज नॉट अ गुड थिंग। क्योंकि एक्चुअल फीलिंग तो सप्रेस हो जाएगी, सब आपने exactly. कुछ डील नहीं किया अपने साथ। हाँ, तो पहले जैसे उसे थर्ड पर्सपेक्टिव पे लेकर आओगे, अपने आप से अलूफ रखोगे उस चीज को, और मान लो आपने खाना बनाना शुरू किया, तो अभी गाजर, भिंडी और कितना तेल डालना है, इसमें जीरा डालना है, कौन सी यूट्यूब चैनल पे कौन सी रेसिपी है, आज ये बनाता हूँ। जैसे आप उसमें घुसे, ये थॉट चला गया। So you have replaced it. एक्चुअली या So, तो जब वो खाना बनाना शुरू किया आपने, ठीक है, आपने कुछ बनाया, बनाने के बाद आपने वो सर्व किया, आपने खाया, एंड फूड इज समथिंग व्हिच शुड ऑलवेज मेक एनीबॉडी फील गुड इफ यू हैव मेड समथिंग, और वो उसमें एक मेकिंग का प्रोसेस भी आ जाता है, पर ये थॉट चला जाता है। नाउ यू कैन रीविजिट दैट थॉट अगेन। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो आपको थोड़ा टेक्निकली दिखता है, और आपको अब समझ में आता है कि हाँ यार, इतना भी और प्लस आप हैंग्री भी नहीं होते मोस्ट ऑफ द टाइम। आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो ओवर थिंकिंग केओस होता है ना, हंगर से भी आ रहा होता है। नहीं होता हैंग्री, वो होता है, तो एक बार खाना खा लो तो दिमाग थोड़ा बेटर भी चलता है। ये भी है ना। बट पता है आपने जो ये चीज बोली ना, उससे मुझे याद आया, सो देयर इज दिस ऑथर कॉल्ड बायरन केटी। आई लव हर बुक्स। ओके, शी हैज दिस थ्योरी, whenever you're stressed about a situation, topic, anything, just ask yourself one question: is it my business? Is it your business? Or is it the universe's business? Put it in any situation. If it's my business, I can actually do something about it, then go do something about it. जैसे आपने डायरेक्टर वाला सिचुएशन दिया, if it's in the director, तो it's not in my hand, तो let it go. तुम्हें जितना करना था वो खत्म। If it's not even the director, if it's the universe के हाथ में वाली चीज, तो बिल्कुल ही छोड़ दो, तो सरेंडर ही कर दो ना। तो फिर इतना क्यों बैठ के कहानियां अपनी पुलाव बनाई जा रहे हो? All overthinking either stems from past or future. It has nothing to do with present. करेक्ट, राइट। तो एट एंड ऑफ द डे, जैसे हम एक्टिंग जब सीख भी रहे होते हैं, तो कितना बात करते हैं कि बी इन द मोमेंट, क्योंकि वहीं से ट्रूथ निकल के आएगी ना आपकी। तो दिस इज माय फेवरेट, माय बिजनेस, योर बिजनेस, यूनिवर्सेस बिजनेस, और वहां पे फिर बात छोड़ दो। वी डू समथिंग डिफरेंट फॉर दिस। हम लोग प्रेजेंट में, बिकॉज एक्टिंग में बहुत ये टूल जरूरी होता है, कि मान लीजिए आप किसी थॉट से चले आ रहे हैं, किसी से कोई बात हो गई है, घर पे कोई लड़ाई हो गई है, या घर की एक टेंस सिचुएशन है, पर आपको आज तो एक्ट करना ना इमीडिएटली। सडनली यू गॉट अ कॉल कि भाई कोई रिलेटिव है, उसको कोई बीमारी हो गई है, एंड द पर्सन इज एडमिटेड, बट यू नीड टू फंक्शन हियर। तो उसके लिए आपको आना तो पड़ेगा ना। और भी बहुत सारी सिचुएशन हो सकती है। हम लोग क्या करते हैं, मतलब मैं क्या करता हूँ, और बहुत सारे एक्टर्स क्या करते हैं, जितने सेंसेस हैं, 5 सेंसेस हैं, सो वी जस्ट फोकस ऑन दोस। सबसे पहले आंख बंद करो, सुनो कि क्या सुन रहे हो, क्या स्मेल है, टेस्ट क्या है, देख क्या रहे हो, फील क्या हो रहा है, यहाँ पर कौन कौन है, एंड उनको रजिस्टर करते रहो। द मोमेंट यू डू दैट, यू हियर, क्योंकि बीइंग इन प्रेजेंट इज व्हाट, कि आपके 5 सेंसेस अभी के बारे में सचेत हो। तो वो like your feet is touching the floor. Wow. Like what I'm smelling, am I smelling a little paint, am I smelling something? No. What I'm looking at you, I'm looking at the cameras, I'm looking at the lights, What all colors are there, what all colors are there, right? Just being aware about it, telling your mind, right? What I'm listening to, so there's a little sound of some AC going somewhere, right? Just awareness आपकी एकदम। So that awareness will bring you here, right now, here. ये एक्टिंग में इस्तेमाल करते हैं हम लोग। I love it, I love it. वो सब छूट जाता है पीछे। हाँ बिल्कुल सही है। फिर आप ये भी सोचते हो कि सामने जो इंसान है क्या करने आया है, और ये आपको क्या करने वाला, और आपको क्या करना है। तो अभी जैसे हमने ये भी बात की कि फेम, और लाइक फेम इज द बाय प्रोडक्ट, और फेम इज द गो टू थिंग। तो यू आर ऑल्सो फेमस, डू यू, and you've previously talked about also कि how fame takes you away from not being yourself completely also. तो आपने उस चीज को कैसे डील किया था? शायद शुरुआत से ना, मुझे थिएटर में आने का जो इंटरेस्ट था वो एक तो था ही, क्योंकि वो लेटर ऑन समझ में आया कि, और मज़ा भी आता था। तो कहानियाँ बोलना, कहानियाँ सुनना, बहुत सारी कहानियाँ दर्शाना, मुझे लगा कि ये मेरी कॉलिंग है, जो कि मुझे कॉलेज में समझ में आया था, जैसे हम पहले बात कर रहे थे।
सो इट हैज़ ऑलवेज बीन लाइक दैट Yeah. कि अच्छी फिल्में देखना, अच्छे प्लेस देखना और कहानियाँ, लोगों के किस्से कहानियाँ सुनना तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। Yeah. सो ये होता है ना कि कहीं शायद कुछ साइकोलॉजिकली शायद मेरे दिमाग में कुछ गड़बड़ है पर ये चीज़ें थोड़ी इंटरेस्ट करती हैं। तो नहीं गड़बड़ नहीं बल्कि कुछ सही है। उल्टा बोल दिया आपने। हाँ। गड़बड़ी कहेंगे इसको समाज में फिट नहीं नहीं होता है अच्छा हमसे। अच्छा ऐसा ऐसी गड़बड़ होनी चाहिए समाज में और। तो वही है कि ये कॉलिंग जो है वो हमेशा से है। बस ये था शुरुआत में, ये जरूर लगता था कि होता है ना कि यार पर्दे पे दिखे, यार हमें कब मिलेगा, ये सारी फीलिंग्स आती हैं, एज के हिसाब से आती हैं चीजें। मतलब द मोमेंट आप स्ट्रगल कर रहे हो कि बिकॉज यू आर ऑल्सो लुकिंग कि मुझे यही काम करना है जिससे मुझे पैसे भी कमाने हैं और इसका एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा मुझे। वो कैसे होगा? सिर्फ प्यार के लिए तो नहीं कर सकते ना। किसी ने बोला कि चलो ये फिल्म अच्छी थी लेकिन हमें लगता है वो किरदार बहुत अच्छा है और उसको हम आपकी जगह पे ले रहे हैं। तो पहले होता था कि मेरा क्यों नहीं हुआ, पर कोई डायरेक्टर ओपनली आपसे बात कह रहा है तो मेरे ख्याल से हर इंसान से इंसान फर्क होता है। भी फेलियर्स जो हैं एक एक्टर को बहुत ही वैसे ले लेने चाहिए, दैट इज व्हाट यू विल गेट। सो एक्सपेक्टेशंस काटो। आपका काम है कि आप जो डिलीवर कर सकते हो अपना बेस्ट, आप उसके लिए कंफर्टेबल होने चाहिए, आप कॉन्फिडेंटली उतना लोगों को पेश कर पाएं। अगर आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंटली लोगों तक वो चीज़ नहीं पहुंचा पाते, देयर इज अ डिससैटिस्फैक्शन कि मैं और अच्छा कर सकता था, तो उस पर काम करो भाई। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम और अच्छा कर सकते थे? ऐसी क्या चीज़ थी जो तुमने उस समय नहीं करी? इसका मतलब तुम अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हो। सो गो डू वर्कशॉप्स, मीट पीपल, रीड अबाउट इट। हजार चीज़ें हैं इंटरनेट पे जिनके बारे में पढ़ सकते हो, लोगों से मिलो। जो एक्टर्स आपको अच्छे लगते हैं, आपके सवाल हैं, उनके पास चले जाइए। क्या होगा? मना ही तो कर देगा कोई इंसान, जान से थोड़ा ना मारेगा। ठीक है, वैसे भी उसको मैं जानता नहीं, दुत्कार के दूर भेज देगा, यही क्या ही कर देगा। जज कर लेगा? कितना ही जज कर लेगा? वो तो चलो एक्टर बनने के लिए एक वो भी हो गया ना, सोशल रिस्क हो गया, यू पुट योरसेल्फ आउट देयर। एग्जैक्टली। तो जो नहीं है उसको, उन गैप्स को फिल करो। कभी कभार अब उसके बाद ये सब चीजें जब करना शुरू करी ना, तो लेटर ऑन स्टेज पे पता क्या होता है कि आपके पास ऑडिशन आया, आपने पढ़ा, आपने इमेजिन किया, आपने उसके कैरेक्टर के लिए लिखा, जो भी किया, आपने ऑडिशन दिया, तो आपको लगता है अब तेल लेने जाए मैं सिलेक्ट होता हूँ कि नहीं। हाँ, आता है ऐसा? आता है, अब आता है तेल लेने जाए मैं सिलेक्ट होऊंगा कि नहीं। मैंने ये चीज जो अभी क्रिएट किया, इस क्रिएशन में मजा आ गया मुझे। तो उस क्रिएशन मेरे में साथ हुआ था एक बार। और अमूमन वो सिलेक्ट हो जाते हो आप उसमें। नहीं, मैं सिलेक्ट तो नहीं हुई थी, पर एक बार एक ऑडिशन ऐसा था जो करके ना आई वाज लाइक कुछ मेरे लिए अंदर से खुल गया था, लाइक आई अनलॉक्ड अ न्यू थिंग फॉर मी। तो एक वो सेटिस्फैक्शन तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा ऐसे वाली हो जाती है। फिल्में तो टेम्परेरी हैं, बनेंगी, साल भर लगेगा, आपने महीना भर काम करोगे, फिर रिलीज हो जाएगी, देन बी फॉरगॉटन। पर ऐसा नहीं होता कि कभी कभी सक्सेस सर पे चढ़ जाती है, लाइक इतने सारे आप बैक टू बैक आपको मूवीज आ रही है, इधर उधर से ऑफर्स आ रहे हैं, एवरीवन वांट्स यू, तो फिर लगता है कि हाँ वही मैं कुछ हूँ। हाँ, अगर अवेयर हो कि मैं कुछ हूँ, ये हो रहा है मेरे साथ, तो अवेयर रहो, क्योंकि वो जो मैं कुछ हूँ आपको आपके रियल सेल्फ से दूर ले जाएगा। हाँ, तो आपके साथ ऐसा हुआ कभी कि आपको आपके रियल सेल्फ से दूर ले गया? हाँ, थोड़ा सा लगा एक पॉइंट पे, पर मुझे लगा नहीं, आई थिंक आई वाज लकी इनफ टू हैव पीपल अराउंड मी जो कि मुझे आईना हमेशा दिखाते रहे। तो बहुत समय तक ये रहा कि अपना काम खुद को पसंद भी नहीं आ रहा था। जैसे मैंने एक टेलीविजन शो किया था, सुमित संभाल लेगा, उसके लिए बहुत तारीफ मिलती है, लोग बोलते हैं, पर मुझे पता है कि एज एन एक्टर इट इज ऑन अ वेरी, मैं बहुत उस पे था, बिगिनिंग स्टेज पे था, जहाँ की जो मैंने सीखा था मुझे उसको अनलर्न करने की जरूरत थी। उसको करते करते मुझे ये समझ में आया कि बहुत सारी कॉन्शियसनेस थी, उस कॉन्शियसनेस को मैं एक आर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से मैं बहुत जोर से चीजें अंडरलाइन और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता था। वेराज, जैसे मैंने पहले कहा, इस आर्ट फॉर्म की खूबी ये है कि ये आसान दिखना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए, वो वही एक्टिंग अच्छी कहलाई जाती है। हम इरफान साहब को, नसीरुद्दीन शाह साहब को या ओमपुरी साहब को बहुत अच्छा एक्टर मानते हैं, जिन लोगों की समझ है एक्टिंग को लेकर उनको मानते हैं। उनकी समझ के हिसाब से आप देखिए ना, वो चीज़ों को कितना आसान और ऐसा सिंपल तरीके से पेश करते हैं लोगों के सामने, तो आपको लगता है वाह। जहां आपको क्राफ्ट दिख गई, कुछ दिख गया, ताली तो मिल जाएगी, पर वो आपको दिल को नहीं छुएगी बात, आपको लगेगा थोड़ा हैमिंग हो गया, थोड़ा प्रिटेंस हो गया।
वो एक्सपीरियंस के साथ आ जाता है काफी। और जनरली सच्ची चीज की, जनरली मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा ऐसा होता है, जो चीज सच्ची होती है उसकी मिमिक्री नहीं की जाती, हो भी नहीं पाती। हो भी नहीं पाती। नहीं जहाँ पता। जो चीज नकली होती है, एक स्टाइल फॉर्म किया जाता है, कुछ किया जाता है, कई लोगों का नेचुरल स्टाइल और फ्लेयर होता है, तो आप उसको देख के थोड़ा सा हाँ। पर वो उन आप जगहों नहीं। पे वर्क करता है। हाँ, पर कुछ वो जगहों पे। एग्जैक्टली वो राइट तरीके से फिट किया है कि इस हाँ। तरीके के किरदार होते हैं, जीवन में होते हैं किरदार, उस तरीके के लोग होते हैं कि जिनको लगता है किस तरीके का इंसान था ये। सो बट आप देखिए ना, जैसे जैसे एक्टर्स बड़े होते हैं, हम उनके किरदारों से नहीं उन्हें जानते, फिर हम उनकी पर्सनालिटी से उन्हें जानते हैं। हम फिल्म देखने जाते हैं तो बोलते हैं ये मनोज वाजपेयी की फिल्म है, ये आमिर खान की फिल्म है, ये शाहरुख खान की फिल्म है। और फिर आप वैसी चीजें एक्सपेक्ट भी करते हो कि जैसे अब आमिर सर की कोई फिल्म आती है तो यू एक्सपेक्ट कि उन्होंने लगान, रंग दे बसंती, 3 इडियट्स जैसी फिल्म्स बनाए, तो लाइक देयर इज अ लेवल ऑफ परफेक्शनिज्म एवरीवन पर आप ऑटोमेटिकली एक्सपेक्ट। एग्जैक्टली पर आप उनमें, उन सब फिल्मों में उनकी पर्सनालिटी ढूंढना शुरू करते हो। फिर आप उनसे उनकी पर्सनालिटी के पीछे ज्यादा हो, बशर्ते कि उस किरदार के पीछे। किरदार के पीछे, हाँ किरदार, क्योंकि तीनों में, ये 3 मूवीज ही अगर आप देख लो, कितने डिफरेंट किरदार हैं, पूरा कैरेक्टर वर्क सब में डिफरेंट है। तो इसका एक बैलेंस बनाना थोड़ा मुश्किल है कि जहां आप पर्सनालिटी भी रहें और किरदार भी। मेरे ख्याल से मनोज वाजपेयी जी बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं। आप जुगनुमा देखिए, आप उनकी गली गुलियां करके एक फिल्म है वो देखिए, आप भूल जाते हैं कि ये मनोज वाजपेयी है, आपको याद रहता है कि क्या किरदार है। फॉर दैट मैटर बच्चन साहब की भी कई ऐसी फिल्में हैं जहां आप भूल जाते हैं कि बच्चन साहब हैं और आप उनका किरदार देखते हैं। लेकिन आमतौर पे शाहरुख सर के साथ भी है, लेकिन आमतौर पे लोगों को पर्सनालिटी देखनी है। तो आपने जैसे शाहरुख सर के साथ काम किया है, आई एम अ ह्यूज फैन, लाइक आई एम लाइक you love his personality. I actually love his personality. I think he's very intelligent. Yes, he is. He's very charming. Like the aura that he has, the charm that he has, I think he's one person who will make you feel special. And I've not heard a single person say anything bad about him ever. Like everyone who meets him is just कि वो उनके फैन से पहले उनको लगता है कि वो मेरे फैन है, कि like as in Shahrukh Khan makes you feel कि he's your fan, right? Yes, he does. तो share something from there, like how was your experience? जो मैं बैलेंस की बात कर रहा था ना, आई थिंक इनके पास एक इमेंस बैलेंस है यार, बहुत ही बढ़िया बैलेंस है शाहरुख सर के पास। उनको एज ए पर्सनालिटी भी फंक्शन करना आता है, उनको एज एन एक्टर भी फंक्शन करना आता है। तो शाहरुख सर की ये खूबी है कि वो सब सारी चीजें समझते हैं। अच्छा। और उन्होंने एक बहुत ही सिंपली एक चीजों को रखा है, ही इज इंटेलेक्चुअल, ही नोज एवरीथिंग। वो तहे दिल से इज्जत करते हैं इस तरीके के सिनेमा की, पर उनको मालूम है कि ये सिनेमा बिजनेस के लिए है, कमर्शियल सिनेमा है, तो कैसे क्रिएट किया जाए। अबाउट हिज पर्सनालिटी, तो उस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उनको मालूम है कि भाई मुझे कैसे लोगों से बना के रखना है, कितनी ह्यूमिलिटी लोगों के साथ रखनी है, कहाँ अपना ज्ञान बखारना है, कहाँ अपना ज्ञान नहीं बखारना है। हाँ, ऐसा ये भी बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि कभी कभार हो जाता है कि यार आप हर जगह ही अपना ज्ञान बखारते हो तो लोग भी आपसे अलूफ होने लगते हैं, क्योंकि फिर वो डिफरेंस हो जाता है। वो है इंटेलिजेंट पर वो नहीं करते कभी भी। आपने कोई ऐसी चीज उनसे सीखी हो जो आपको लगता है एज एन एक्टर एंड एज अ पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ? लाइक ऑब्वियसली व्हेन यू टॉक अबाउट मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग के सेंस में हम बात करते हैं, तो उस सेंस में आपको कुछ लगा हो कि वो कोई एक चीज ऐसी है जो आपने पिक की हो कि ओ ये मुझे अपनी लाइफ में करना चाहिए? सबसे पहले यू नीड टू बी क्लियर इनफ कि आप यहाँ क्या करने आए हैं। तो वो कहानी, उनके लिए भी कहानी हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। शाहरुख खान सेट पे कभी ये नहीं करते कि शाहरुख खान इज इम्पोर्टेंट, शाहरुख खान के लिए फिल्म इम्पोर्टेंट है। तो वो हमेशा एक चीज ये रखते हैं। दूसरी जो मुझे एक चीज लगी कि वो इंसान इतना कॉन्फिडेंट है दैट देयर इज नो इनसिक्योरिटी, तो वो इनसिक्योरिटी उनके को एक्टर्स में भी रिफ्लेक्ट नहीं होगी। और जनरली आपकी इनसिक्योरिटीज, अगर कोई इनसिक्योर होगा तो वो आपके को एक्टर में रिफ्लेक्ट होगी। अगर आपके सामने आपका को एक्टर शिवर कर रहा है, मे बी बिकॉज ऑफ व्हाट्सोएवर, और आप उसे कंफर्टेबल फील नहीं करा पा रहे हैं, इसका मतलब आपकी कोई इनसिक्योरिटी है जिसकी वजह से आप फील नहीं करा पा रहे। कल को तुम मेरे साथ अगर एक्ट कर रहे हो, राइट, एंड अगर मैं तुम सेट पे आए हो, मैं बोलूँगी हाँ क्या स्क्रिप्ट है, अच्छा लाइन याद है, चलो करते हैं, यू स्टार्ट शिवरिंग ना। पहले नर्वस हो गई, लाइक लाइन क्या बोलना है मुझे नेक्स्ट, क्योंकि मेरे मन में इनसिक्योरिटी थी ना कि पता नहीं कहाँ से कौन क्या एक्टिंग करेगा, क्या ही आता होगा इसको, मेरे सामने कहाँ टिक पाएगी, और टिकनी भी नहीं चाहिए। डीप डाउन आई एम थिंकिंग दैट, सो आई एम मेकिंग यू नर्वस,
Yeah. Whereas if I am confident of what I'm going to do here and मुझे कोई शक सुबह नहीं है तो मैं यहाँ पर आऊंगा तुमसे मिलूंगा लाइंस करने एक बारी तो आप बोलोगे अरे इतना नॉर्मली बात कर दिया हाँ. शाहरुख डज दैट हाँ. बोले कुछ नहीं आराम से चिल करना गड़बड़ होगा फिर ले लेंगे so you're like हाँ हाँ यार so that is one thing which I have learned from him always make your co-actors comfortable he always being the superstar he's the King Khan right Yeah. he's the topmost Yeah. I would say so he always stands and give his cues हाँ. always even if he is not on camera वो off camera stand होके आपको cues देते हैं मुझे पता था मैं सही बंदे की फैन हूँ यार मुझे पता था मुझे अपने आप पे भरोसा था एंड ये हम लोग थिएटर में करते हैं हाँ. पर जैसे ही उनको करते हुए देखा ना मैंने सही कर रहे हो भाई आप भी करते रहो ये हम्म. क्योंकि कभी कभार हो जाता है कि अरे नहीं कोई छोटा हाँ. बड़ा नहीं होता राइट इवेंचुअली कहानी इंपॉर्टेंट है जैसे ही आप कहानी सामने आएगी हाँ. आपका छोटा बड़ा होना दिख जाएगा बी हाँ. आप जब क्यूज करेक्ट दोगे Yeah. राइट तो आपको रिस्पॉन्स सही मिलेगा और आपके रिस्पॉन्स पे मेरा रिस्पॉन्स बैठता है ना Yeah. अब आप कर रहे हो कि हाँ मैं चलता हूँ पर तुमने ऐसा क्यों किया तो अजीब नहीं लगेगा हाँ. क्योंकि मैच ही नहीं कर रहा है Yeah. ये अलग इमोशन में बात कर रहा था अलग इमोशन में बात कर रहा था तो गलत क्यों देने हैं हाँ. जस्ट बिकॉज ऑफ योर लिटिल इनसिक्योरिटी जो हम लोग अभी बात कर रहे थे आपको कभी हुई इनसिक्योरिटी इन जनरल आई एम सेइंग कुछ भी हो सकता है कि आपको कभी लाइफ में ऐसे इनसिक्योर फील हुआ हो कि मे बी थोड़ा सक्सेस देखने के बाद लगे कि ओ नेक्स्ट पड़ाव पे पहुंचना है और मे बी मेरे लेवल के जो एक्टर्स हैं दे आर डूइंग बेटर देन मी मे बी आई शुड बी डूइंग कुछ भी किसी भी टाइप की इनसिक्योरिटी हो सकती है एक दिमाग में जरूर आता है कि यार अब आगे और आगे क्या और आगे क्या फिर इवेंचुअली ये समझ में आ गया कि कभी ऐसी इनसिक्योरिटी सच बोलूं तो हुई नहीं कभी नहीं हुई बिकॉज ये जरूर होता था कि भाई अब इस सीन में ना जान लगा के कर देना है ये जरूर हाँ इस तरीके की इनसिक्योरिटी बहुत थी कि सामने वाला जज कर रहा है इनिशियली अच्छा क्योंकि आप यू डोंट नो थिंग्स और वो ना जानने की इनसिक्योरिटी थी कि पता नहीं सामने वाला क्या सोचेगा पता नहीं इसके बाद मुझे और काम देगा नहीं देगा हाँ. मेरे बारे में क्या इंप्रेशन फॉर्म कर रहा है Yeah. तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन Yeah. was giving a lot of insecurity What kind of lack of information? of the script of how other people are going to deal with you of what happens when you do the scene so आप जब सीन देते हो उसके बाद आप देखते हो चारों तरफ कि किसी ने क्या सोचा आपको ये भी लगता है कि मैंने सही किया कि नहीं किया फिर आप बहुत जोर लगा के सीन करने लगते हो वो ऑपोजिट हो जाता है वो और खराब Yeah. होता रहता है तो आप ओवर कॉम्पनसेशन तो आपकी इनसिक्योरिटी होती है कि लोग मुझे क्या जज कर रहे हैं इट इज नॉट अबाउट दैट इट इज अबाउट यू एंड दैट कैरेक्टर लाइक वही है जितना बढ़िया आपका प्रेपरेशन होगा उतना कॉन्फिडेंट आप होगे आप जो ये मुद्दा हो गई। बोलने आए हो वो बोलो बी एक्टिंग में सीखा है प्लान मत करो सीन कभी भी कि मैं ये करूंगा उसके बाद मैं ये लुक दूंगा फिर ये लुक दूंगा तो मुझे ये लुक देना हाँ ये मत करो ये नहीं होगा जो सामने से मिल रहा है उस पे रिस्पॉन्ड करो हाँ देन यू आर प्लेइंग द सीन otherwise you are planning a scene it is not about planning when you have conversations with yourself about these things तो how does that go मतलब जैसे कि थॉट आता है इमोशन आता है जैसे इनसिक्योरिटी का इमोशन आया फीलिंग आई तो उस टाइम पे गोइंग एंड टॉकिंग टू द कास्टिंग डायरेक्टर तो सोल्यूशन हो गया राइट उससे पहले आप वो इमोशन के साथ कैसे डील करते हो कि क्या करना है हाँ नहीं क्या करने से पहले कि ये फील हुआ मुझे इनसिक्योर हो गया तो सीधा एक्शन प्लान आ जाता है हाँ मतलब आना नहीं चाहिए बिकॉज इनसिक्योरिटी किसी काम की नहीं है यार किसी भी तरीके की तो वो एक डायलॉग क्या होता है आपका अपने साथ कि ऐसा क्यों फील हो रहा है और उसका रूट कॉज क्या है तो आप रूट कॉज ढूंढना शुरू करते हो कि मुझे और वो आपको पता ही होगा क्योंकि फील आपने ही किया है और एक इंसिडेंट की वजह से किया है और उस इंसिडेंट में ऐसा क्या आपको नहीं समझ में आ रहा आपका कोई ना कोई ऐसा दोस्त होगा जिससे आप जाके बात कर सकते हो और उससे पूछो कि मुझे ऐसा फील हुआ तो वो आपको क्लियर कट आईना दिखाने वाले लोग होने चाहिए आपके सामने फुल ऑफ योरसेल्फ वाली लाइफ अगर जीना शुरू कर दोगे तो वो बहुत थोड़े समय के लिए है यार सस्टेन नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके इर्द गिर्द आसपास आपके सारे लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे कोई फेक इंसान के साथ नहीं रहना चाहता चाहे वो आपके माँ बाप फेक क्यों ना हो उनको भी छोड़ दोगे आप हाँ 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 नहीं वो तो एक चाहिए होता है पर एक वो भी होता है ना कि आपका इनर डायलॉग जो होता है क्योंकि जैसे आपने बोला कि हाँ पूछोगे कि रूट कॉज का है पर बहुत बार ये होता है कि हम में वो क्लैरिटी नहीं होती या हम वो उस पॉइंट तक पहुंचना नहीं चाहते डिगिंग खुद से इसीलिए थेरेपीज भी होती है ना कि समटाइम्स यू नीड समवन हु कैन टेक यू टू द रूट कॉज क्योंकि मे बी अ पार्ट ऑफ यू इज अफ्रेड ऑफ गोइंग देयर और अ पार्ट ऑफ यू डजंट फील सेफ इनफ तो हम बहुत थोड़ा इसलिए डिल्यूजनल में भी रहते हैं कि नहीं ठीक है कोई बात नहीं कुछ नहीं है सब ठीक है लाइक यू नो पेंट अ रोजी पिक्चर इवन फॉर योरसेल्फ समटाइम्स वो डिनायल जिसको बोल देते हैं हम तो ऐसा कभी हुआ आपके साथ
हाँ, बहुत बारी दैट सेल्फ चेक, मतलब सच बोलूं तो थेरेपी की जरूरत शायद मतलब करना चाहिए। अगर आपको कोई नहीं मिल रहा है जिससे आप बात कर सकते हो उस लिहाज से, तो आपको जाना चाहिए और थेरेपिस्ट उसके पास जाओ जो आपको बिल्कुल नहीं जानता। हाँ जान पहचान में मत ढूंढो क्योंकि For जान sure. पहचान में वो क्या है, आपका फेवरेट आपके फेवर करके आपसे बात करना शुरू कर देगा। हाँ वो भी, और मुझे लगता है डाउन द लाइन आपको खुद भी एक वो फीलिंग आती है कि ओ ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरे बारे में क्या सोचेगा। बट थेरेपिस्ट एक्चुअली शुड बी वन पर्सन जिससे आपको फर्क ही ना पड़े वो क्या सोच रहा है। जाके पूरा अपना चिट्ठा खल्ला सब खोल दो सब खोल दो। और देन क्योंकि तभी हो पाता है कि वंस यू आर एक्चुअली एबल टू रीच यू नो द रूट कॉज। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारा रूट कॉज कम्स बचपन के किसी उससे, लाइक जिसको बोलते हैं इनर चाइल्ड वर्क करना होता है, क्योंकि इनसिक्योरिटी हो जाती है एक थिंग जो बहुत आपके बिलीफ पैटर्न्स बचपन के फॉर्म हुए होते हैं। करेक्ट। बिलीफ पैटर्न्स भी बहुत फनी चीज होती है राइट, कि बचपन में कुछ देखा, एक बिलीफ पैटर्न बन गया, ओवर द इयर्स यू कीप अट्रैक्टिंग सच सिचुएशंस, वो और ज्यादा मजबूत होता गया, मजबूत होता गया। तो आपको ऐसा लगता है कि आपके इस एक्टिंग जर्नी में कभी you realize some of your belief patterns that were wrong, but with the knowledge you have now, you kind of like rewired your belief pattern? हाँ, ऐसा लगता है, पर सच बोलूं तो अब ये हो गया है कि जो भी है बिलीफ पैटर्न, एक ना एक तो बिलीफ पैटर्न होगा आपका। यू कैन नॉट गेट डन विद इट। हम लोग को एनएसडी की ट्रेनिंग में हमेशा ये बताया गया कि एक्टर्स को न्यूट्रल होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। न्यूट्रलिटी रखने का एक ही तरीका है कि आप जितने सारे पर्सपेक्टिव्स के साथ एक्वेंटेंस रखेंगे, अलग अलग तरीके के जीवन के साथ, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि गांव से आया हुआ कोई बंदा आपके इंटेलेक्ट लेवल का ना हो, होगा ही, ठीक है, सिर्फ उसकी भाषा फ़र्क है तो आप उसको जज क्यों कर रहे हो। तो आपको वो एक्सप्लोरेशन हमेशा ऑन रखनी चाहिए टू लुक एट द न्यूट्रलिटी। और अब तो सोशल मीडिया इतना एक्सप्लोर करके आपको वैसे ही देता है कि आप अपने इंटरेस्ट के, दूसरे की इंटरेस्ट की चीज़ें भी आप देखते हो। हमारी बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेस भी होती थी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में। एक कोई एग्जांपल? जैसे एक थी कि जिसमें आप अपने बैचमेट का किसी का भी वार्डरोब, आप उसके वार्डरोब के कपड़े आप पहनते हो और वो आपके वार्डरोब के कपड़े पहनता है, सो इट्स ऑलवेज गेट शफल्ड। सो कपड़े आपकी बहुत पर्सनल चीज़ है जो आप अपनी चॉइस से आप खरीदते हो और पहनते हो, एंड सडनली आप बोलते हैं यार इसमें से आज मैं क्या पहनूंगा, और वो रंग पहनता है, कोई नहीं पहनता है, कोई ढीले ढाले कपड़े पहनता है, आप नहीं पहनते हैं, तो सब ना बहुत ऐसा मिक्स हो जाता है और आप वो रोज पहन के घूम रहे हैं। तो आपको दूसरे का थॉट, दूसरे का पैटर्न, उसकी इंपॉर्टेंस और वो कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर किताबें जब आप पढ़ते हो तो किताबों से कितना पर्सपेक्टिव मिलता है कि इस इंसान ने ये बात कही, उस इंसान ने वो बात कही, और किताबों से मेरे ख्याल से हम बहुत सीखते हैं। अब फिल्में देख लो, अच्छी फिल्में देखो, ऐसी फिल्में जो कि वर्ल्ड ओवर लेवल पे, जैसे ईरानियन सिनेमा है जो कि इंसानियत की बात करते हैं, इतने डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में वो लोग फिल्में बनाते हैं, तो आपको समझ में आता है कि इंसान का बेसिक, सच्ची फिल्म है ना वो। ऐसी बहुत सारी आपको अच्छी फिल्में आपको पता लगती रहेंगी जो, और फिल्म अच्छी वही होती है जो आपके अंदर कुछ तब्दील करके जाए। वो फिल्म जो आपके अंदर कुछ तब्दीली नहीं कर रही, वो अच्छी फिल्म नहीं है मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है। मैं बायस्ड हूँ इस चीज को कि देखी, टाइम पास हुआ, पॉपकॉर्न खाए तो ऐसा लगता है हाँ 3 घंटे हो गए। अलग अलग टाइम का अलग अलग नीड होता है ना, लाइक कभी कभी आपका व्हेन यू आर सो स्ट्रेस्ड इन योर लाइफ, लाइक कभी कभी होता है कि मन करता है दिमाग बंद करके साइड रख दो, तो उस टाइम पे वैसी वाली मूवीज अच्छी लगती है। बट कभी आपका मन होता है कि नहीं मेरे को कुछ एनरिचिंग चाहिए, मुझे कुछ अपना होराइजन बढ़ाना है, मुझे पता है मैं उस टाइप की फिल्म देखने जा रही हूँ तो मैं अपना दिमाग बंद करके जा रही हूँ, मैं उसमें कुछ सीखने नहीं जा रही हूँ, मेरे को कुछ लाइफ के लेसन नहीं मिलने वाले हैं उसमें। But there are films like Three Idiots. हाँ, which are both. There are films like Rang De Basanti. Yeah. There are films Coincidentally, both are Amir Khan's. And और भी फिल्में हैं, आप ऋषिकेश मुखर्जी की पुरानी फिल्में देखिए, चुपके चुपके, हाँ, एंटरटेनिंग फिल्म्स हैं, बट yeah. बहुत सारी फिल्में हैं, जरूरी नहीं है कि वो आपको दिमाग ही लगवाएंगी, वो आपको हंसी खेल में भी चीजें, आर्ट है, आर्ट है, स्टोरी टेलिंग का आर्ट है। हाँ, तो वो आर्ट जो है, यहाँ आर्ट का कॉर्पोरेट से मिलन हुआ है, तो उसका एक फाइन बैलेंस कोई क्रिएट कर पाए तो। मुझे चक दे इंडिया भी बहुत पसंद है। चक दे इंडिया है, बहुत अच्छी फिल्म है, बिल्कुल है। लव दैट फिल्म। चक दे इंडिया वो तब्दील करके जाती है आपको अंदर से, और कुछ हाँ होता है अंदर, फील होता है, तभी तो रह गई वो फिल्म, कुछ तो होगा। How do you take care of your mental and emotional well-being? Is there like some sort of meditation that you do or any practice that you feel that works with you? Doesn't have to be spiritual, can be anything. I travel. You travel? I travel. What does travel do for you? Opens up in a way कि एक अलग पर्सपेक्टिव देता है दुनिया का,
हम यहाँ बॉम्बे में जिनसे मिलते हैं वो फिल्में बना रहा है, ये बना रहा है, एक ही तरीके की बातें कर रहा है Yeah. और इसी चीज के अट्रैक्शन में भी जीता है. Mm. सो जब आप ट्रैवल करते हो तो अलग अलग अट्रैक्शन, अलग अलग चीजें, अलग अलग पैशन रखने वाले लोग आपसे मिलते हैं. Mm. बी, नेचर अपने आप में इतना डिफरेंट है, Yes. एयर अपने आप में इतनी डिफरेंट है, True. साउंड्स अपने आप में इतनी डिफरेंट है कि आपको लगता है कि यार कितना कुछ था अनएक्सप्लोर्ड जो मैं नहीं जानता. नेचर तो वैसे हीलिंग भी बहुत होता है. हाँ, वहाँ का खान पीन, Yeah. बेसिक लोग जो जीते हैं, Mm. एंड मुझे लगता है कि वो जो बेसिक लोग जो अपना जीवन जी रहे होते हैं, भले वो अपने कुकून में जी रहे होते हैं, Yeah. लेकिन वो बहुत सच्चाई से अपना जीवन जी रहे होते हैं. Mm. और उनकी अंडरस्टैंडिंग एक बहुत अलग चीज़ है जो कि आप कभी समझ ही नहीं पाओगे यहाँ शहर में बैठ के. जैसे एक जगह मैं किसी इंटरव्यू में कहीं देख रहा था, शायद कोई रील थी जहाँ पर मैंने ये बात देखी. मैंने वैसे लोग देखे लाइफ में कि क्योंकि हमको अब क्या है, हमको वो सब किरदार के तौर पे दिखने लगता है मामला, और उसका अगला पिछला आप सोचते हो कि ये बात इंसान ने अगर बोली तो ये क्यों बोली, इसके पीछे क्या Yeah. रीजन था. Yeah. कि आपको जो दिखाया जा रहा है उसके पीछे जाहिर सी बात है एक कहानी है. Yeah. तो आप बियॉन्ड इट जानने की कोशिश हमेशा करते हैं क्योंकि वो आदत भी बन गई है. Yes. तो वो एक अच्छी चीज़ है जो कि डेवलप होती है. और अनजान लोगों से कभी लिफ्ट लेना, हाँ. ठीक है, अनजान जगहों पे जाना, बसों में ट्रैवल करना, लोकल जगहों पे जाके, सो आई डू दैट अ लॉट. हाँ. जैसे अभी हम कोडाईकनाल की तरफ थे, हम्म. सो हम पूमपराई नाम की एक जगह पे गए. अच्छा. पूमपराई का मतलब होता है पूम पूम मतलब पू मतलब फ्लावर एंड ऐसा कुछ है. पूम मतलब मेरे ख्याल से रॉक होता है एंड प्राय मीन्स फ्लावर. सो इट मीन्स फ्लावर्स एंड रॉक्स. दैट्स द नेम ऑफ द प्लेस. एंड जनरली आप वहाँ पर आसपास देखें तो वहाँ पर चट्टाने हैं और फूल हैं उस पूरी जगह में, और ये वहाँ का लोकल कल्चर है. ऊपर जैकेट पहनते हैं, नीचे लुंगी पहनते हैं. हाँ. हाँ, क्योंकि वहाँ ठंड होती है, मिस्टी माउंटेन्स हैं. ठीक है, पर वाओ. किस तरफ है, तमिलनाडु उस तरफ हाँ. जाके है. Yeah. सो एक डिफरेंट कल्चर देखने को मिलता है. वहाँ पर लोग फार्मिंग करते हैं, फिर जो लोग फार्मिंग करते हैं उनसे जाके मिलते हैं तो उनकी बेसिक नेसेसिटी ऑफ लिविंग बीइंग, अल्टीमेटली इंसान कैसे कैसे जी रहा है, हमारा काम तो उसी दर्शाने पे है. Yeah. उनकी अपनी कहानियां हैं, अलग अलग Yeah. कहानियां हैं, किसकी क्या कहानी है, और वो कैसे क्यों गाड़ी का धंधा कर रहा है, उसका घर में कौन है, वो कितना बड़ा है, कितने भाई बहन है. तो यू ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि भाई ये भी एक जीवन जी रहा है. तो आपको कंपैरेटिवली फिर अपना जीवन आपको समझ में आता है कि आप क्या जी रहे हो और किन चीजों में पड़े हो. तो आपको थोड़ा सा ना एक बेसिक सच दिखने लगता है चीजों का. और एक वो भी हो जाता है ना कि लाइक अभी हमको अपनी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी लग रही होती है, बट ऐसी जब आप लोगों से मिलते हो वो होता है, यू गेट टू नो दीज थिंग्स, तो यू रियलाइज कि वर्ल्ड इज सो मच बिगर, देयर आर सो मेनी वर्स प्रॉब्लम्स. तो इट काइंड ऑफ आपका थोड़ा बाहर से जब आप चीजों को देखते हो तो आपको वो भी एक क्लैरिटी मिलती है कि नहीं यार, बहुत ओवर एस्टिमेट कर रखा था मैंने अपनी प्रॉब्लम्स को, इतनी बड़ी नहीं है. क्योंकि वो भी हो जाता है ना, हम अपने आप को विक्टिमाइज भी बहुत जल्दी कर लेते हैं कि हाय मेरे साथ ये हो रहा है, हाय अब मैं क्या करूं. जब आपको एक्चुअल में पता चलता है कि ये प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं, फिर लगता है हाँ नहीं इतना बुरा भी नहीं है, अच्छी लाइफ है अपनी, सही चल रही है. और वही वापस घूम फिर के बात वहीं चली जाती है कि किसको क्या प्रूव कर रहे हैं. किसको क्या प्रूव कर. अपनी इम्प्रूवमेंट होगी तो खुशी मिलती है, तो घूम फिर के आप वहाँ चले जाते हैं. इम्प्रूव नॉट प्रूव. एक बात आपने बहुत अच्छी करी अभी, एक विक्टिमाइजेशन वाला जो बीमारी है, हम्म. वो एक बहुत भयंकर बीमारी है. मतलब वो हाँ. कि मेरे साथ ही गलत क्यों हो रहा है, पूरा यूनिवर्स मेरे सर पे ही क्यों टूट रहा है. एंड फिर आप ये विक्टिम कार्ड प्ले भी करते हैं. हम क्या करते हैं, हमारे साथ ही गड़बड़ हो गया, हमारी किस्मत ही ऐसी है, हम ऐसे परिवार में पैदा हुए, हम अमीर नहीं हैं. भाई पता आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने किया ये अपने साथ. हाँ. शुरू में जब ये नेपोटिज्म वगैरह वाला बहुत चल रहा था, ऑफ कोर्स आई स्ट्रगल्ड अ लॉट एज एन एक्टर, राइट. तो मुझे लगता था यार इन लोग को इतनी इजीली अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं. आई वाज सो लॉस्ट व्हेन आई केम, आई डिडंट नो लेफ्ट फ्रॉम राइट, आई यूज्ड टू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय एवरीवन. तो मैं बहुत ज्यादा कंप्लेन करती थी क्योंकि मेरी इनसिक्योरिटी थी, ए, बी जेलसी थी, राइट, सी आई वाज लाइक मेरे साथ मुझे ये नहीं मिल रहा है. हजार क्या लाख और लोग हैं जिनको नहीं मिल रहा है, बट आई वाज लाइक ये नरेटिव कैसे हेल्प कर रहा है मुझे. It will not. नहीं हेल्प कर रहा ना, तो व्हाई डोंट आई जस्ट चेंज द नैरेटिव. ठीक है, यस उनके पास वो अपॉर्चुनिटीज हैं, उनके पेरेंट्स हैव वर्क देयर होल लाइव्स, उन्होंने वो बिल्ड किया है एम्पायर, अपने बच्चों के लिए किया है. तो अगर वो उनको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है तो गुड फॉर देम. अगर तुम्हारा क्राफ्ट है, अगर तुम्हारा टैलेंट है, तो तुमको भी मिलेगा. तुम उस चीज पे फोकस करो. पर हमें क्या होता है, हम ना जूस लेने लगते हैं पिटी से, सिंपैथी से, अपने आप को नीचे रखने में भी ना एक कंफर्ट लेवल बन जाता है. क्योंकि इजी है ना,
मेहनत नहीं करनी, रो ही रहे हो तुम, बहुत इजी है. तुम इतने टाइम तक स्ट्रगल में रहते हो या सैडनेस में रहते हो, यू गेट वेरी कंफर्टेबल. तो एनीथिंग दैट विल टेक एफर्ट टू चेंज और गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन will feel very uncomfortable. So it feels easier to be in that victim stage. पर वो कहीं लेके नहीं जाएगा आप. पर वो कहीं लेकर आप नहीं जाएगा. stagnantly वहीं रहोगे. Exactly. तो if you have to realize and if you feel कि हाँ okay ठीक है, मैं ये अपने आप कर रहा हूँ, मैं अपने आप को victim मान रहा हूँ बहुत टाइम तक, तो just flip your belief ना, उसको change करो. And if you think कि इतना easy नहीं, it's easier said than done, it is. You have to consciously keep rewriting that. Like for that also I have this small practice that I do, like it's called faster EFT by Robert G. Smith, or your taptics also he calls it. He says कि हमारी ना wiring होती है, ठीक है, every like neurons take every message to you know every part of your body. That ways हमारे जो memories हैं या जो belief patterns हैं, they also flow in that this thing. Now if I know consciously कि okay this belief pattern is not serving me thinking कि ओ सारी opportunities इनको मिल रही है, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, how is that helping me? It's not helping me in any way, right? So I know I have to change it. So now all I have to start doing is I'm gonna, so there are these median points, okay? So this is 1 point, this is 1 point, this is 1 point, this your collarbone. So I'm gonna just instant थोड़ा अपने आप को उस mindset से बाहर निकालने के लिए I'll just start tapping. I'll be like, I release and let it go. I release and let it go. All this insecurity, this jealousy, I release and let it go. It's time to let it go. It's safe to let it go. Like whatever you're feeling in the moment, I'll just repeat that. I'll keep tapping. क्योंकि उससे क्या होता है, एक ब्रेक बन जाता है. हाँ, वो जो मेरा एक लूप बन रहा है, जो चली आ रही है ना, उसको मैं it's called defractionization. मैंने रोक दिया उसको, ठीक है. Of course, there's like a whole process of it, but in small moments, you just like tap, take it out, peace. Sometimes तो just breathing out also can be very relaxing, but मैं especially जब set पे होती हूँ या like vanity में होती हूँ, like when I'm about to go in and I feel कि okay, I'm everywhere but here, so I'll just do this. I release and let it go. Everything that's bothering me, I release and let it go. It's time to let it go, let it go, let it go. I release it all and let it go. Peace. Come to the moment, right? And why? It's an effort, but you have to take that effort. अगर चूज किया है कि जीनी है ऐसी जिंदगी, तो उसके लिए मेहनत करो. मेहनत करनी पड़ेगी. And yes, you learn your acting, you work on your craft, you work on your talent, but it's so important that you work on your mind also. क्योंकि जब तक आप माइंड के ऊपर काम नहीं करोगे, आप फंसे रहोगे बहुत सारे अपने थॉट प्रोसेसेस में, अपने लिमिटेड बिलीफ पैटर्न्स में. ये जो आप कह रहे हो सही बात है, क्योंकि it's about again telling your mind to think this, and you're also accompanying that with a physical memory. वो चीजें वैसे होंगी. बहुत बारी हमें ये अपने गोल्स और अपनी चीजें ना, बहुत ऐसा लगता है कि यही प्राइम है, पर ये प्राइम नहीं है. मतलब इट्स वन लाइफ, एक जिंदगी है. हाँ, ठीक है, उस जिंदगी को आपको फुली एंजॉय करना है. दैट्स इट. सो मुझे ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, इसका स्ट्रेस लेके अगर हम चलेंगे कि ये अचीव कैसे होगा, तो आपके लग गए. हाँ. सो इफ यू आर एंजॉयिंग इट, तो ये भी हो सकता है कि आपको ये समझ में आए थोड़े समय बाद कि अरे यार, मुझे तो मजे यहाँ आ रहे थे, ये मेरी कॉलिंग थी. बहुत समय पे ऐसा लगता है कि ये मेरी कॉलिंग है. जैसे मुझे काफी बार कभी अब होने लगा है कि अभी नहीं करनी है एक्टिंग. अभी नहीं करना है मुझे फिल्म, बट ठीक है, बिकॉज़ लाइक यू वांट टू गो बैक टू थिएटर डायरेक्शन. नहीं, मुझे वो भी नहीं करना है. नहीं. मुझे कभी कभी लगता है कि अभी यार सिर्फ जीवन जीता हूँ ना, आज खाना पकाना है बस. हाँ. मुझे नहीं मिलना, मुझे सिर्फ आज मुझे तोरी की सब्जी बनानी है. दैट इज व्हाट आई लाइक. But is it coming from a place of satisfaction or is it coming from a place of burnout? नहीं, it is coming from a place of again improving and feel yourself more rather than setting up goals in life. Of course set up करो goals, आपको करने हैं तो, but it is very necessary to enjoy it. If you don't enjoy what you're doing and आप सिर्फ अचीव करने के पीछे लगे हो, आप वो कुछ नहीं होगा उस अचीवमेंट से. अगर एक्टिंग में एंजॉयमेंट नहीं आ रही है या किसी भी आर्ट में अगर आपको एंजॉयमेंट नहीं आ रही है, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, आप कुछ नहीं उखाड़ सकते.
और आपको तब ये लगेगा कि यार मैं तो ये काम करने के पीछे लगा हूँ, पर ये आदमी क्या एंजॉय कर करके कर रहा है आपको, Yeah. तब आपको ये लगेगा आपका को एक्टर तो एंजॉय कर रहा है, आप कहाँ फंसे पड़े हो। Yeah. पर ये वैसे भी इन जनरल भी अगर हम लाइफ में देखा जाए ना, बहुत बार ऐसा होता है कि हम ना अपने लिए मेरे को पता है, मैंने ये किया है बहुत बार कि डू और डाई सिचुएशन कर देते हैं कि ये नहीं किया ना तो बस जिंदगी खत्म है। भाई इट ऑल, आई थिंक इट ऑल कम्स डाउन टू जस्ट लुकिंग एट द बिगर पिक्चर पीछे से। आप एक गांव में पहुंच गए, हाँ। आपके पास एक गाड़ी थी, हम्म, ठीक है, एक के पास मर्सिडीज थी, आप पहुंच गए बस लेके, हाँ। ठीक है, उस गांव में एक दुकान है, हम्म, उस एक दुकान पे वही इडली वड़ा सांभर मिलता है हम्म, जो वो लोकली बनाता है, टेस्टी बनाता है, और वो मिलता है 30 रुपए में, okay, ठीक है। आपकी जेब में 100 रुपए, सामने वाले की जेब में 500 रुपए, हम्म, जो मर्जी कर लो, सिमिलर रूम्स है वहां पर रहने के लिए, झोपड़ी ही है जिसको सबको मिली है रहने के लिए, आप उसी शॉप पे जाओगे और उतने ही 30 रुपए का ही आप वो खाओगे। yeah, भले मेरी जेब में 100 रुपए थे और आपकी जेब में 500 रुपए थे, yeah, या 5 लाख थे आपकी जेब में, yeah. आपका पेट जो है वो ज्यादा से ज्यादा 2 प्लेट में भर जाएगा। 60 रुपए से ऊपर आप खर्च करके कंटेंट नहीं हो सकते, और Yeah. जितना कंटेंट मैं हुआ हूँ उतना ही कंटेंट आप भी होगे, बिकॉज मिल वही रहा है भाई, Yeah, बाकी तेरी सेविंग है। अब लेटर इन लाइफ yeah, you would have a lot of things because you have got a value of something, उस Yeah. वैल्यू को यूज करके आप बहुत सारी जगह पर जा सकते हो, पर उस मोमेंट में, उस समय की सच्चाई में yeah. यही सच है, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। ये मैंने कोडाईकनाल में सब फील किया। Hmm. मुझे फर्क नहीं पड़ता था कि मेरे साथ जो और आदमी है या कोई और रह रहा है उसकी जेब में कितने पैसे हैं, वो किस बैकग्राउंड से है, अल्टीमेटली वहाँ एक ही दुकान पे जाकर खाना खा सकते थे और वहाँ पर 30 रुपए की प्लेट मिलती थी। कोई शोशेबाजी नहीं है, ये है जो है। तो वही है। Yeah. तो बाकी सारी चीजें तो हम प्रूव करने के लिए जा रहे होते हैं, Hmm. एक्सपीरियंस We'll के all लिए भी come back जाते to हैं। improve, don't prove. अगेन दैट, अदरवाइज वो सच तो आपका यही है भाई, Yeah. इसके अलावा कहाँ चले जाओगे आप। इसलिए कॉम्प्लेक्स नहीं लेने का भाई किसी चीज का। हाँ. आप अपने आप को कंटेंट फील करते हैं, अगर आप इस चीज पे फोकस करेंगे कि मुझे जितनी जरूरत है, मुझे उतना कमाना है और उतनी चीज चाहिए, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्टीमेटली ये कंज्यूमरिज्म वाली जो चीज है, Yeah. ये है, मुझ में भी है, Hmm. ऐसा नहीं कि मैं कंप्लीटली इरेडिकेट कर चुका हूँ। इच्छा तो आई जाती ना, क्योंकि वो अट्रैक्शन वाली चीज तो है, ये बचपन से डील कर रहे हैं उस चीज से, पर धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं Hmm. कि अब जरूरी है कि घर पास में है तो मैं गाड़ी लेके ही पहुंचूं। हाँ. वो अलग चीज है कि मैं क्यों लेकर पहुंच रहा हूँ, Yeah. उसकी अप्रोच अगर मुझे क्लियर है Hmm. कि मैं गाड़ी लेके यहाँ क्यों पहुंच रहा हूँ, मर्सिडीज में यहाँ क्यों आ रहा हूँ, बिकॉज वो प्रोड्यूसर देखेगा और सोचेगा मेरे खर्चे ज्यादा और मुझे ज्यादा पे करेगा, Yeah. तो वो एक अप्रोच है। मुझे आईफोन उठा के यहाँ रखना है तो एक अप्रोच है। आईफोन आपकी यूजेबिलिटी को आसान बनाता है, अगर आप उस वजह से आईफोन इस्तेमाल करते हैं तो अलग बात है। Hmm. वेराज एंड्रॉइड में जिस चीज के 3 स्टेप्स होंगे, आईफोन में 2 स्टेप्स हैं, तो इट्स एन इजी टेक्नोलॉजी। Let's not go there. I disagree. मैं वही बोल रहा हूँ कि इट हैज बिकम अ स्टेटस सिंबल, एंड स्टेटस सिंबल कभी कभार कमाई देता है, उस कमाई से आप एक वैल्यू इकट्ठा करके बैठोगे, और जितनी वैल्यू आपके पास लाइफ में होगी, आप इवेंचुअली लॉन्गर समय के लिए एक टेंशन से बाहर. बाहर रहेंगे। चलो, बहुत सारी सीरियस बातें कर ली, हाँ, थोड़ा सा फन करते हैं, करिए। ठीक है? सो हम ना 2 गेम्स खेलेंगे। तो द फर्स्ट गेम वी आर गोइंग टू प्ले इज कॉल्ड 2 ट्रूथ्स एंड 1 lie. ओके? बहुत मतलब फेमस गेम है। आप कोई भी मुझे 3 स्टेटमेंट्स बताओगे, सिचुएशंस बताओगे फ्रॉम योर एक्टिंग जर्नी, ठीक है? जिसमें से 2 सच होंगी, 1 झूठ होगा, और मुझे देखना है और हमें गेस करना है कि वो झूठ कौन सा है, ठीक है? ओके। तो गो. सो एक बार क्या हुआ था कि मैं एक ऑडिशन में गया, और एड का ऑडिशन था, सिंपल सा ऑडिशन था, और एक लाइन थी जो मैं अटक गया। वो इट वाज सम लिटिल रैंट व्हिच वाज सपोज्ड टू बी सेड, एंड मैंने वो रैंट किया, मैं अटका। कास्टिंग डायरेक्टर ने मुझे देखा, ही हैड अ वेरी सिंपैथेटिक पॉइंट ऑफ व्यू टुवर्ड्स मी, एंड ही सेड कि इट्स ओके। मैंने बोला नहीं नहीं, मैं एक बार दोबारा ट्राई करता हूँ। ही सेड नो नो इट्स ओके, आप थोड़ी देर बाद आ जाओ। सो आई सेड कि नहीं नहीं, मैं कभी करता हूँ, फिर से करूँगा। मैं फिर बोला, मैं फिर अटका। फिर उसने बोला कोई बात नहीं, थोड़ी देर बात कर लो, एंड वो थोड़ा सा मुझे चैलेंजिंग लगा, तो मैंने नहीं नहीं मैं करूँगा, मैं अभी करूँगा, मैं अभी करूँगा, और फिर अटका और फिर अटका, ऐसे 4 बारी किया। देन he started smiling at me and he was like, then I was like, हाँ ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। Okay. And I went out, and थोड़ी देर बाद मैं वापस आया और मैं फिर अटका, Okay. और मैं नहीं ही कर पाया वो। उसको बोलना ही पड़ा कि अब रहने ही दे क्या, तो मैंने भी यही बोला कि नहीं, वैसे एक बारी और कर सकते थे, लेकिन ठीक है। ये करके मैं निकल आया। ये एक सिचुएशन थी।
एक बार ये कैसे ऑडिशन पे गया, ऑडिशन गया और सामने कास्टिंग डायरेक्टर ने बोला कि वाह यार क्या सीन किया यार, ताली वाली मार दी उसने, आके गले वाले लगाया और पता लगा अंदर से ऑफिस से आए तो कैमराज वर अटैच टू दी, मतलब उस कैमरे का लिंक एक अंदर जा रहा था Okay. मॉनिटर पे, हाँ. और वहां से डायरेक्टर आया, उसने बोला यार आई फाउंड इट, यू आर द वन, Okay. एंड what a job. I was very overwhelmed and everything and I was like कैसे लूँ, तारीफ ले नहीं पाया, but that's what it has been said. फिर एक बार ये सिचुएशन हुआ था कि एक आदमी ने बहुत तारीफ करके बुलाया कि हाँ वाह, ये तीसरा सिचुएशन, हाँ, तीसरा stage. बुलाया और बोला कि आप बैठो, कैसे हो फलाना, अरे आपकी एक्टिंग के तो मुरीद हैं यार, ये वो फलाना ढिमका ऐसा वैसा, और फिर जब पैसे बोले तो बोले कि मतलब ये क्या दे रहे हो आप मुझे, तो वो इतनी तारीफ और चने के झाड़ पे चढ़ा चुका था आदमी कि जब पैसे देने की बात आई तो वो इतने बुरे थे कि मुझे लगा कि मैं क्या बोलूं. तीनों सिचुएशन भी सच हो सकती है, ये तीनों सिचुएशंस बहुत what do you guys think? I think it's the second one. I say second one. Second is the lie. Yes, you're right. I'm right? Dude, I'm so good at this game, no? Okay, now that we've proved I'm amazing guesser at 2 truths and 1 lie, let's go to our second game, which is a rapid fire. Okay? So you have to be really fast, okay? कोशिश करूंगा. हाँ, बहुत अच्छे से कोशिश It depends how the mind functions. आजा, come on, switch on your A game. Ready? हाँ, देखते हैं. Let's go. Name one Bollywood star you would love to work with. सलमान खान. What's a funny or unexpected moment from a shoot? Funniest moment? हाँ. Lot of them. एक बताता हूँ जो अभी याद आई. Donkey, I was shooting and this is my first day, first shot, and I was being told कि ये यहाँ से तुम्हें basically I got a fake degree. मुझे पहली fake degree मिलती है डॉक्टर की, and I'm very happy कि मैं डॉक्टर बन गया. तो मुझे चल के मुझे यहाँ से हुर्रे करके जाना है. And cameras were ready looking at me. And the moment it started, I was like, yeah, I will get it. I was so excited and overwhelmed by the part. It's the first scene, first day, Rajkumar Hirani is there. इतना सारा कुछ चल रहा था. So you were controlling yourself. You were being, give your best and trust yourself. Whatever you are feeling, you do not need to shy. Openly दे देना. भले ही उस समय आपको पाद आ रहा हो तो पाद देना. It is that. So be that natural. Did you? So I was, no. That would have been funny. मतलब in the sense, being in the moment is that. Yeah. That you do not plan anything and by all the rules and regulations of whatever I have learned. Rapid fire, So come on. उसमें ऐसे भाग के कुछ करना था, तो उनकी खुशी दिखानी थी. So I became so happy that I started running on the road. And there were people who were there. Thank Godly, those were not juniors. Those people were from एक theatre group के लोग थे जिनको juniors के तौर पे इस्तेमाल कर रहे थे. मैंने किसी की साइकिल फेंकी, किसी को उठा के फेंका, फिर एक ट्रैक्टर था उसके ऊपर जाके चढ़ के नाचा हूँ मैं, कुछ किया है. And people were like, ये कहाँ चला गया? And the camera was like, अरे कहाँ जा रहा है? They said, we'll do this again because we did not know कि आप इतनी दूर तक करते हुए चले जाएंगे इस चीज का. I was like, okay, मुझे नहीं पता था क्या है. Okay, what's one thing fans would be surprised to know about you? One thing? Fans would be surprised to know about you. Oh, nothing. Okay. What's a dream role you hope to play someday? See, whatever I have got in my life. अभी जो देखा है वो लोगों ने देखा है. I want to play what I haven't done. I want to explore all that. But मेरे लिए playing something serious, playing something very emotional, शायद एक बहुत ऐसी कहानी जिसमें मैं इमोशनली किसी से बहुत अच्छे तरीके से डील कर रहा हूँ. मे बी अ काइंड ऑफ अ लव स्टोरी विच इज़ वेरी इंट्रीगिंग एंड a very complex understanding of relationships is there. I'm looking out for that kind of a thing because I love playing relationships. I love playing relations. And that is what acting is also about. If you weren't an actor from this industry, what would you be doing? मेरी किराने की दुकान होती है. सुपर स्टोर बनाता मैं उसका. And I seriously believe कि काश मैं अभी भी ये कर सकूं. What's your guilty pleasure TV show or movie? You're not proud that you watch it? हाँ. A lot of them. All the... One, just say Achha, one. what I watch it. हाँ. I don't watch this. No, come on, one guilty pleasure. Guilty pleasure of watching my own show in a way. There was Sumit Samarlega as my guilty pleasure. If you could have any superpower on set, what would it be? It would be that nobody fights and everybody has an immense understanding of the other people. And they're not themselves. They're thinking about the other people. That everyone. is their superpower. Like you want to make it happen. Ki I want everyone. to make it happen. Okay, cool. कि अपने बारे के अलावा छोड़ के बाकी सबका सोचो. What's your go-to dance move at a party?
I hold my leg like that, right? Put my arm up and just do it. That way. What's the weirdest compliment you've ever received? I keeps getting this compliment, which is कि यार एक compliment मिला था Sanky Pandey was a role which I did. He's a completely gone case goon, emotionally very active, right? Somebody who has killed his father, doesn't understand relations, but he is in search of love. Somebody on set came with a gun and said कि अरे संकी भैया हम भी आपके जैसे हैं, and I was like भाई मैं वैसा नहीं हूँ. In fact, if you'll see my some other podcasts also, there are people अरे संकी तो बड़ी intelligent बकचोदी करता है. So there are comments of this sort, but that is the kind of a weirdest compliment which I have got. You played the character really, really well. I ज़्यादा did. ही अच्छे से कर दिया आपने. Oh, मजेदार था, काफी हाँ. मजेदार था. Anything which is away from you, I think you want to live that fully. You can't do that in real life, ना, you get it Yeah. over there. हाँ, liberty होती है. Okay, if you could swap lives with any one celebrity for a day, who would it be? That would be Leonardo DiCaprio. Yes. Describe yourself in 3 emojis. 3 emojis. हाँ. A, that huggy thing, right? B, I think love in my eyes, that ways. And one is like total laughter. Total laughter, वो वाला था ना एक, Yeah. that kind, वो वाला emoji. Okay. Weirdest thing you've done for a role? I did that for, I always do that. For my all roles, I do a weirdest of the things. Lately, I was shooting for a film, a German film hai. So I was lying down on a street side, whereas people knew me as an actor at that point of time. But I was lying down on a street side and I kept lying in there. People thought I'm drugged out, मेरे को दारू वारू पी लिया है, ये कुछ है. इनफैक्ट उस रोल के लिए एक बार मैं ऐसा बहुत कुछ किया उस रोल के लिए. मैं व्हील चेयर पे बैठ के it's very interesting. I tell you this story. बाइकला की तरफ शायद कहीं थे हम लोग शूट करने के लिए जा रहे थे. तो वहाँ व्हील चेयर पे बैठ के I was all prepared with my makeup and each and everything, and I was sitting like this, right? So that character is very drugged, dosed, pervert किस्म का character है. Okay. So मेरा हाथ ऐसा था, आम का सीजन था, एक बंदा मेरे हाथ में आम देके चला गया. फिर एक आदमी मेरे सामने से गया, वापस आया. So my leg was amputated. उन्होंने leg वो लगाया. लगा. Amputated नहीं था, it's basically Prosthetic. prosthetic किया हुआ था, gangrene हुआ हुआ पैर. So and I was thinking it off to be in a lot of pain and stuff. So एक आदमी आया मेरे पास, उसने मुझसे पूछा कि आपको इलाज करवाना है. And I was looking at him कि Oh shit. अगर इलाज कराना है तो सारे पैसे दूंगा, हाँ. पूरा खर्चा दूंगा. हाँ. करवाना है तो अभी चलो हॉस्पिटल में जमा करता हूँ. So I had to look at to him and I used to say कि कुछ मिलेगा क्या कूकने को. So that guy did that to me. कि मरो साले सड़क पे. And he went. This happened with me in Baikala. Wow. कुछ ज़्यादा कैरेक्टर में घुस गया. बड़ा मजा आया था. And there were people around. वो प्रोडक्शन के लोग थे इधर उधर दाएं बाएं. कोई आया नहीं आगे. मैंने क्योंकि बहुत पहले से मैंने don't disturb me, for me you don't exist, let me be in what I have to do. ठीक है. So आप प्लीज मुझे छोड़ दीजिए. आप हाँ यहाँ से कोई बदतमीजी हो, कुछ हो, लड़ाई झगड़ा तो देख लीजिएगा, पर मैं यहाँ हूँ. पर ये होता रहता है. डंकी के लिए आई वेंट टू पंजाब और किसी एक ऑफिस में जाके घुस गया था. उनसे जाके पूछा कि मेरे तो कोविड में पापा चले गए, मम्मी घर पे हैं, तो आप मुझे अब्रॉड जाना है. बोलता पैसे मैंने नहीं, FDN नहीं, क्या करें, मैं तो थोड़ी ज़मीन है. ठीक है. तो उनसे जाके पूछा, उन्होंने पूरा मुझे एक्सप्लेन किया कि वहाँ मत जाओ, थाईलैंड चले जाओ, गाड़ी चलानी आती. मैंने हाँ आती है. तो मैंने वहाँ जाके वो फूड डिलीवरी वाले बन जाना. मैं पूरा एड्रेस सब कुछ लेके आया. और वो कैसे जुगाड़ करके कितने पैसे लगेंगे, 3 लाख में मेरे को सब सेट करके भेज रहे थे वो. ये सब किया, तो पता लगा. चलो ये ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर आपको किसी के साथ कॉमिक पेयरिंग बनानी हो बॉलीवुड में, लाइक जैसे शाहरुख एंड SRK एंड सैफ, किसके साथ बनाओगे? I think Vicky Kaushal would do that. Yeah. Okay. Bollywood actor you would want to go on a road trip with? Nice one. वैसे बहुत सारे हैं एक्चुअली. टॉप चॉइस. रोड ट्रिप शाहिद कपूर के साथ चलते हैं. हाँ, क्यों? He does a lot of road trips, I think. He is a biker. I love riding bikes. And I think एक अलग तरीका है उनका, जो कि बहुत एरोगेंट दिखता है. बट हाँ, वो एक्सप्लोर करना मेरे को था. बेस्ट विलन इन बॉलीवुड अकॉर्डिंग टू यू? बेस्ट विलन इन बॉलीवुड
Could be a character also, not specifically an actor. A character you thought was. What in my mind is there, Amrish Puri comes to me first. That's true. उनसे बड़ा कोई मुझे दिखता नहीं, villain. कोई है ही नहीं. And बहुत comically भी play किया है, बड़ा सच्चाई से भी play किया है. If there was a lizard observing you all day in your bedroom, what would she think about you? Same as I'm thinking about the lizard. मैं वो सोच रहा हूँ क्यों पड़ी है यहाँ पर, वो भी सोच रहा है क्यों पड़ा है यहाँ पर. Okay. And I can do that for Yeah. the whole day. Full day, you'll just look at the lizard. हाँ. Wow. Maybe try to drug it in a way or something like that. I would not be in the room only. Why? I'm very scared of lizard. अरे वो अपना काम कर रही है. हाँ, कहीं और जाके कर. शिकार का इंतजार. मेरे घर के मच्छर खा जाएगी भाई. This is so नहीं, good. मेरे पास है अदर चीज. Like, okay, वो बस थोड़ा वैसा वाला question था. Alright, that was it for our rapid fire, which is not very rapid fire as according to our theme. Any last piece of advice that you would like to give to aspiring actors or people joining the industry, according to you, that they should know? I keep saying that you should know that what exactly you are here for. If you're here for fame, right, do the right things for being in fame. I myself was here for acting and telling stories, and that was my kick and calling. And I still do that. I love stories and I love telling stories, love knowing stories. So I focus on that. Always remember, आपके काम का बाय प्रोडक्ट है फेम. जैसे कि emotions are the byproduct of your actions. You cannot play emotions. Yeah. You cannot be famous and be a good actor, right? It's like if you're a good actor, you will become famous eventually. And have patience. Have patience. Stay. आपका रहना उस जगह पे रोज दिखना आपके होने का, आपके वजूद का वो है. So if you're here, don't rush. Things will happen, but slowly, and stay. Thank you so much. That was amazing. Thank you. So that was it for today. Thank you for watching. This is Beyond the Spotlight with Garima. Please share and subscribe the channel. There's a bell icon somewhere here Yes. or here. Here. Yeah. Here. Yeah. Just press that, and there'll be more such podcasts. There'll be more such interesting actors over here, which Garima, the therapist, would be interviewing, and I think you'll get a lot of insight here. Thank you. Mahalo. So if you see XOBs also, you will see a very different side of me. मेरे सीधे आँख पे लगा ठाप करके और आँख में मेरे सारे वो बारूद के चर्रे चले गए. तो मेरे को लगा मेरी आँख गई. Honestly, it's much harder to do commercial cinema. Farhan. Yeah. Because he's just so funny. मतलब he's so entertaining. He's just amazing to have a conversation with. My director once told me, इसको detune करो, ये बहुत अच्छा लग रहा है, स्क्रीन में मॉडल लग रहा है. मेरे सारे नाखून टूट गए थे, काले हो गए थे.